A very good evening and welcome all of you to this class on on the current affairs for 2024. So in this segment of current affairs, we are covering Indian polity related topics which have been in news. Some of the days the topic could be of the same day's newspaper, but we are as a matter of deadline, we are covering the topics from January 2023 onwards, right? And we'll be going backwards wherever necessary. So Uniform Civil Code. There was an editorial in the newspaper today. Just to give you a glimpse, क्या चल रहा है इसका context एक बार समझते हैं. This is the screenshot from the editorial. Uniform Civil Code यानी कि हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ कैसे रिलीजन में धर्म के अनुसार कल्चर और रिलीजन आर क्लोजली इंटरट्वाइंड, राइट. मैरिज इज अ कल्चरल थिंग बट इट इज sanctified by religious practice. ठीक है. So culture and religion are intertwined. Now when we set out to regulate cultural practices or religious practices, we are talking about constitutional morality. ठीक है. Supreme Court has in the recent judgments, wherever you find some catchy phrases, you can jot them down. So Supreme Court has talked about constitutional morality in the judgments like Sabarimala judgment, right? सबरीमला जजमेंट हो गया, ट्रिपल तलाक, राइट. सो द आइडिया ऑफ द कोर्ट इज, द आइडिया ऑफ द जुडिशरी इज टू गिव मोर प्रिमेसी टू सिविल लिबर्टीज दैन टू पर्सनल लॉ. अंडर द गार्ब ऑफ पर्सनल लॉ, अंडर द गार्ब ऑफ, पहले समझ लो कोई बात नहीं, अंडर द पर्सनल लॉ की होड़ में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर जेंडर के या बच्चों के जो सिविक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, they are being bowed under the pressure of personal law. धर्म में हमारे समुदाय में ऐसा लिखा है कि एक से ज्यादा शादियां अलाउड हैं. आमिर खान, राइट, आई मेंशन्ड हिम इन दी डीएनए डीई एज वेल. सो शादियों का सिलसिला नहीं रुक रहा. हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, पीपल स्टार्ट टेकिंग रिफ्यूज बिहाइंड द रिलीजियस लॉज, पर्सनल लॉज टू लेजिटिमाइज द इललेजिटिमेट थिंग्स. हिंदू लॉ में एक शादी अलाउड है, ठीक. हरियाणा's deputy chief minister, his name was Chandra Mohan, right, and there was a lady who was the state की attorney, deputy attorney या कुछ district attorney थी, अनुराधा बाली. ठीक है. अब सीएम का वकीलों से मिलना जुलना होता है, सरकारी वकील से तो होगा ही. डेप्यूटी सीएम चंद्र मोहन landed up being a married man, 45 years, 47 years, being a married man, landed up in an illegitimate affair with Anuradha Bali, right. They both eloped for 20 or 21 days. When the CM is not there and the deputy CM is lapata, so they both eloped for 21 days. After they came back, they were not Chandra Mohan and Anuradha Bali, they were Chand Muhammad and Fiza Anuradha Bali. Why? Because in Islam, Shariat law, more than one marriage is allowed. So Chandra Mohan ditched his wife, but he actually did not ditch her because he would be caught by law, right. So such kind of practices are happening because one religion allows two marriages, more than one marriage, bigamy, polygamy. In the process, the constitutional morality suffers. Religious morality is different for different religions, but constitutional morality becomes the casualty of religious morality, becomes the casualty to religious morality. है ना. constitutional morality is becoming the casualty to religious morality. ये होना नहीं चाहिए. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1950. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी समुदायों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ कि उनके सिविल जो मैटर्स हैं, जो उनकी पर्सनल मैटर्स हैं, वो कैसे रेगुलेट होंगी, शादी कैसे होगी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सक्सेशन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी,
If the father dies, girls should be considered as equal parceners in the property of the father. Alimony. If there occurs a divorce between a couple, who would get what share? Equality of property post divorce, right? Custody of children. So these are the matters which we want to address on an urgent basis. I would like to divide civil law or personal law into two parts. One is purely personal matter, right? Purely a matter of personal law. One is something which is impinging upon fundamental rights. Here comes constitutional morality. Where did this term come from? Supreme Court in Sabarimala judgment had said that the only type of morality that will prevail in the constitution is, that will prevail in a constitutional democracy is constitutional morality. Sabarimala judgment में क्या कहा? Religious morality purely religious matters, purely religio-cultural matters can be allowed to be retained in personal law. We can divide this issue into two parts, that we would not trample upon. Trample मतलब किसी के मतलब स्टॉम्पिंग योर फीट ऑन समथिंग, ठीक है, किसी की छाती पे पैर रखना, स्टॉम्प करना जैसे फौजी करते हैं, राइट? हम वो भी नहीं करना चाह रहे कि किसी के धर्म की प्रैक्टिसेस को कुचल दें. जो लेजिटिमेट प्रैक्टिसेस हैं वो चलने दो. जैसे कि भाई 7 फेरे होंगे हिंदुइज्म में, उसमें तुम्हें घुसने की क्या जरूरत है? स्टेट शुड नॉट इंट्रूड टू मच इनटू दीज अफेयर्स, while at the same time there are issues like custody of children. ठीक है, पॉलीगैमी और यूनिगैमी, बाईगैमी जो भी है, ठीक है, वन मैरिज, ये होना चाहिए. डिवोर्स लॉ, कॉन्जुगल जो इश्यूज हैं, ठीक है, कॉन्जुगल राइट्स जिसे हम बोलते हैं. ठीक है ना, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अडॉप्शन, ये कैसे होगा, है ना? ये मैटर्स क्या हैं? इन मैटर्स को अगर हम नहीं एड्रेस करते तो किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं. इन मैटर से जो बिल्कुल प्योरली रिलीजियस मैटर्स हैं उनको अलग कर देते हैं. दिस कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री, बिकॉज nobody would, time and again, nobody would object to this idea, because the one who is violating somebody's right, patriarchal society, males, they also know that this is blatantly wrong, patently this is a wrong thing, so they would not object to it. Developing a consensus around these points would also be easy, है ना? Here, if we impinge upon or if we enter or intrude into this area, then there would be a backlash, communal backlash could be there. It would lead to riots or disharmony, communal disharmony in the country. Got it? तो ये हैं contours of the debate, contours of the issue
for today. तो जैसे लव मैरिज वाला पॉइंट है, इस्लाम में अगर मेल करे तो 3 या 4 मैरिजेस अलाउड होते हैं, बट सेम में अगर फीमेल करे तो मोर देन 1 मैरिज इज अलाउड। हाँ, उनके लिए फिर वो वही चीज आ रही है ना यहाँ पे कि वो चीज गलत है ना। तो इसलिए हम क्या चाह रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी। आज के एडिटोरियल पे एक नजर डालते हैं, वी आर सीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सुप्रीम कोर्ट while declaring Sabarimala temple entry ban to be illegal, to be ultra vires the constitution, had said that religious matters, religious morality is fine, right? But in a constitutional democracy, what would prevail is constitutional morality. We are not a constitutional morality का, constitutional democracy का मतलब क्या है? Written form of constitution is there. We are not a theocratic democracy. Theocracy क्या होता है? Where only for, हाँ वो तो आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो। थियोक्रेटिक होता है धर्म के शास्त्र के अनुसार, यानी कि गीता के अनुसार प्रजा चलेगी, कुरान के अनुसार काम चलेगा, लीडर इलेक्ट होगा। बाइबल के अकॉर्डिंग चर्च कैथोलिक इटली रोम से रूल करेगा। वो क्या है? थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी। हम यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। यानी कि धर्म के ठेकेदारों को यह बात याद रखनी होगी कि वो एक लोकतांत्रिक ढांचे में हैं, लेकिन वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतांत्रिक ढांचा है। Everything has to happen according to constitutional norms. NCERT class, constitution rules the state. We are not a theocracy. Theocracy कहाँ पे होता है? Theocracy का basic meaning है where the law and order, where the state craft is managed according to religion. ठीक है? Which country, theocratic country or theocratic state is a state which declares one religion to be its official religion. हम theocratic democracy नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज यहां पे आ जाती है। क्लियर? डन। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेसिस क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आर्टिकल 13, रिमेंबर व्हाट डिड आर्टिकल 13 से? आर्टिकल 13 said that Article 13 said that doctrine of eclipse it talks about. It said that laws which are pre-constitutional laws or post-constitutional laws, pre-constitutional laws or post-constitutional laws which infringe upon fundamental rights, laws which infringe upon fundamental rights would be declared null and void. अब इसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया, पर्सनल लॉज नल एंड वॉइड नहीं होंगी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाई थी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जिनको इंडिया ने वर्बैटिम अडॉप्ट किया है, वो उस हद तक नल एंड वॉइड हो जाएंगी जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करती हैं। ठीक है, लाइक इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड, बट 1973 में हम क्या लेके आए? CRPC, राइट? हमने रिफॉर्म किया, उसमें जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द डीएम वर टेकन अवे। लाइकवाइज यहाँ पे जब धर्म की लॉज की बात आएगी, रिलीजियस लॉज की, क्योंकि हमारा उस टाइम पे जो बंटवारा हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, इट हैपेंड इन सच सर्कमस्टांसेस दैट माइनॉरिटीज गॉट द फीलिंग ऑफ सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट। इसीलिए हमने क्या किया? स्पेशल मैरिजेस एक्ट वगैरह हम लेके आए, लेकिन माइनॉरिटी रिलीजियस लॉज को हमने टच नहीं किया।
मेजॉरिटी रिलीजियस लॉज को हमने चेंज किया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सती एबॉलिशन एक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी को इस बात की सांत्वना है कि वो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी को और खतरा लगेगा कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसलिए हमने रिलीजियस माइनॉरिटी अफेयर्स को छेड़ा नहीं। फंडामेंटल राइट्स में जब हमने ये एक्सेप्शन डाला तो इसी के चलते डायरेक्टिव, फंडामेंटल राइट्स में जब ये एक्सेप्शन डाल दिया, ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये डाल दिया कि चलो जब टाइम ऑपर्चून आएगा, व्हेन देयर वुड बी ऑपर्चून टाइम, जब हम ऊपर उठ चुके होंगे तो हम जो धीरे धीरे से फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, वैसे ही एक दिन हम इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट में या एक कॉमन लॉ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, फेयर इनफ। एक्सेप्शन रखी थी उस टाइम पे, ट्रिपल तलाक जैसे कानून को छेड़ना, टिंकर करना, उससे फेर बदल करना, मुस्लिम समुदाय इसको हल्के में नहीं लेता। कंसिडर इंडिया वॉज सराउंडेड इन द नॉर्थ बाय पाकिस्तान, इन द ईस्ट बाय ईस्ट पाकिस्तान, है ना, जूनागढ़ और इस तरफ हैदराबाद की भी बात ही नहीं कर रहे हम। अगर ऐसा कुछ होता तो वेस्ट पाकिस्तान या कुछ ऐसा भी बनने के चांस हो जाते, इसलिए हमने उन चीजों को छेड़ा नहीं। ठीक है, पेटेंटली गलत था, जेंडर जस्टिस नहीं है। ट्रिपल तलाक इज व्हाट? अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जेंडर जस्टिस। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी ने, देखो इसके पॉलिटिकल कॉन्टूवर्स भी थोड़ा समझने होंगे, बैकड्रॉप अभी तक समझ में आ गया? ट्राई टू री रन द रील इन योर माइंड वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। 1-2 मिनट के लिए उसको एसिमिलेट कर लो जो अभी तक समझा है। डन? अब देखो इसका बैकड्रॉप क्या है। अगस्त 2018 में 21st लॉ कमीशन ने एक पेपर पब्लिश करा पर्सनल फैमिली लॉज के ऊपर। तो उन्होंने कैटेगोरिकली मतलब साफ शब्दों में दे सेड नो टू इट, दैट यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट दे हैड सेड। ठीक, अब हिंदू के 3-4 एडिटोरियल्स, ये सब जब नोट्स बनाते हो हम इसको पढ़ते हैं, 3-4 अलग अलग राइटर्स ने ये लिखा है कि 2018 से 2023 तक कुछ नहीं बदला, कुछ खास चेंज तो आया नहीं। तो अब 2023 में व्हाई देन इन 2023 द मैटर हैज बीन रेफर्ड टू लॉ कमीशन ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है समझते हो? क्या होता है? विच वन साइड? देखो पोलराइजेशन का सिंपल मतलब होता है, जैसे काफी बार हमें ये मीनिंग नहीं समझ में आते, अर्थ अभी हम को मिंगल होके रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब। ठीक, पोलराइजेशन का मतलब है नॉर्थ पोल, हिंदूज अलग मुस्लिम्स अलग, पोलराइज हो गए। ठीक, पोलर बेयर पोल्स पे रहता है, पोलराइजेशन। तो दोनों अलग अलग बिल्कुल दीवार आ गई बीच में, रिलीजियस पोलराइजेशन। व्हाई एम आई टेलिंग यू द मीनिंग? इट टेक्स अस ईयर्स टू अंडरस्टैंड, and finally until unless we do not understand we would not be able to write it in the answer। कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं गलत लिख रहा हूं या सही। ठीक है, now that you got the meaning, तो
अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का डिवाइसिव एजेंडा है लोगों को डिवाइड करने का, रिलीजियस पॉलराइजेशन के चलते 3 चीजें प्रॉमिस करी थी बीजेपी ने। क्या? राम मंदिर, दूसरा 370, ठीक है, आर्टिकल 370, तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। ठीक, अब क्योंकि ये काम नहीं हुआ तो अब बड़े छोटे भैया आएंगे, योगी जी वहीं से हैं, ठीक, तो वो इसको पूरा करवाएंगे। ठीक है, अब नया मैंडेट लेने के लिए, रिलीजियस पॉलराइजेशन के लिए ये किया जा रहा है। डेवलपमेंट में कुछ किया नहीं, विकास कहाँ है? कहीं नहीं, है ना। तो उस वजह से इसको डिस्कोर्स में दोबारा से लाया जा रहा है। और 22nd लॉ कमीशन ने, वर्स्ट स्टिल, 22nd लॉ कमीशन ने इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज कर दिया है। लोगों से विचार मांगे जाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनरली लॉ कमीशंस वर्क इन एन ओपेक मैनर। पब्लिक कंसल्टेशन का कल्चर मोदी युग में देखने को आज तक नहीं मिला। अब इस मुद्दे को पब्लिक से कंसल्ट करना, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक से पहले आप लोग टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे हीटेड डिबेट देखते थे। उधर मौलवी साहब बैठे, उधर कोई और, तो वहाँ पे वो लड़ाई चल रही होती थी, है ना, कि सही है या गलत। आपकी अदालत में भी वो मुस्लिम महिलाओं को ले आए, रजत जो भी है नाम है उनका, रजत शर्मा, राइट, बे शर्मा। सो पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पोलराइजेशन चल रही है, समझ रहे हो। ये तो होगा रीजन। 21st लॉ कमीशन ने क्या कहा कि भाई इनकी एक बार चीजें देख लेते हैं जो पीछे चल रही थी। The document, their report, that compilation of 185 pages, it was saying, was progressive in nature. जहां तक it emphasized non-discrimination over uniformity. Non-discrimination over uniformity. It favored, मतलब इसने क्या कहा कि भाई जो पर्सनल लॉ के एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, men against women, women against men, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो चीजें हैं उनको एम्फेसाइज करा था इस रिपोर्ट ने 21st लॉ कमीशन ने। लॉ कमीशन क्या है? लॉ कमीशन इज अ बॉडी अपॉइंटेड एवरी ईयर टू सजेस्ट द गवर्नमेंट अबाउट द ऑनगोइंग लीगल चैलेंजेस। ठीक है, वाटर डिस्प्यूट्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए कि नहीं, फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं। सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर and it is headed by a retired chief justice or justice of high court, Delhi high court, supreme court, likewise ordinarily high court, right। अब इन्होंने क्या कहा है, 21st लॉ कमीशन जो पहले वाला था 2018 का, उन्होंने प्रोग्रेसिव नेचर में ये कह दिया कि भाई नॉन डिस्क्रिमिनेशन को फेवर किया ओवर यूनिफॉर्मिटी। इन्होंने ये कहा कि इंडिया इज कल्चरली सच अ डाइवर्स कंट्री दैट यू कैन नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। India's diversity is its beauty, right? If you want to convert diversity into uniformity, it will come at the cost of national integrity. Integrity क्या है? भारत क्या हो जाएगा? अखंडता जो है, अलग अलग होने लग जाएंगे लोग, लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी। ठीक है, नेशनल यूनिटी की कॉस्ट पे जो यूनिफॉर्मिटी आए वो ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें इन्होंने लिखी हैं कि यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ unity, should not come at the cost of uniformity. Sorry, uniformity should not come at the cost of unity of the nation. Got it? तो इस रिपोर्ट को अगर हम स्टडी करते हैं, the commission said that a unified nation did not necessarily need to have uniformity. Please write down 21st Law Commission report on Uniform Civil Code. लिख लिया? डन? ठीक है, तो एंड दैट द एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू रेकनसाइल आवर डाइवर्सिटी विद यूनिवर्सल, to reconcile our diversity with universal and indisputable arguments on human rights. हमारी डाइवर्सिटी को रिकनसाइल, तालमेल बिठाने की जरूरत है किसके साथ में? मॉडर्न यूनिवर्सलिस्टिक ह्यूमन राइट्स के साथ में।
ठीक है, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिस्टिक ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं? गर्ल्स हैव इक्वल राइट एट एजुकेशन, इक्वल राइट एट प्रॉपर्टी, इक्वल राइट एट डिवोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, सक्सेशन राइट्स, ये सारा कुछ, राइट? तो यहाँ पे अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रिलीजियस मोरालिटी की बात हो रही है। बैलेंस किसकी फेवर में होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। बाकी की जो चीज़ें हैं, जो पर्सनल अफेयर्स हैं, वो हमें नहीं जानने, है ना? नामकरण कैसे होता है, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो सब एक्सट्रेनियस मैटर्स हैं। जो कंट्री की सिविक लाइफ को मैनेज करने में जो चीज़ें रास्ते में आती हैं वो होनी चाहिए बस, ठीक है? जो पर्सनल लाइफ का मैटर है वो नहीं। जैसे इफ somebody is getting married to an NRI, if some female is getting married to an NRI, there is a risk of human trafficking taking place under the name of marriage. वो कनाडा गए और वहाँ पे महिला को बेच दिया, इसलिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज अ मस्ट, ठीक है? फिर हम दूसरे जो सिविक लॉ की बात करते हैं, गे राइट्स, LGBTQ राइट्स, ठीक है ना? क्या उनको, या एडॉप्शन में क्या एक मेल मेंबर, मेल फादर या मेल कपल फीमेल को, बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, देयर इज अ रिस्क ऑफ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन। वो सारी चीज़ों को एड्रेस करो जो पर्सन ए एंड पर्सन बी के आपसी रिलेशन का पार्ट है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी वो नेशनल लाइफ का भी, एक नेशन की भी जिम्मेवारी बनती है दोनों लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने की। बस वहाँ तक, डन? नाउ सेक्युलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। हमारा सेक्युलरिज्म कैसा है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है? यही पॉइंट्स हो जाएंगे आइडिया ऑफ कार्टे ब्लांचे। कार्टे ब्लांचे मतलब ऑल इनकम्पैसिंग। अम्ब्रेला वहां तक ठीक है जहां तक कपड़े गीले ना हो। अब तुमको पैर भी कवर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से, अम्ब्रेला पैर तक ले जाएंगे, वो गलत। एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन तक ले जाएंगे, मतलब सर से हेड टू टो कवर करने की जरूरत नहीं है, कवर ओनली एज मच एज इज रिक्वायर्ड। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ये कहता है दैट स्टेट वुड नर्चर एवरी रिलीजन इक्वली, ठीक है ना? सेक्युलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्लुरैलिटी। सेक्युलरिज्म, प्लुरैलिटी क्या होता है? हाँ, नहीं, प्लुरैलिटी मतलब R1 R2, सिंगुलर एक रिलीजन नहीं है ना, प्लूरल R3, रिलीजन 1 2 3 4 5। सेक्युलरिज्म कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट प्लुरैलिटी प्रेवलेंट इन द कंट्री, मल्टीप्लिसिटी ऑफ और वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन्स प्रेवलेंट इन द कंट्री। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है? स्टेट, बोर हो रहे हो? सेक्युलरिज्म क्या है? आप ऐसे सर खुजा रहे हो तो मेरे को क्या लगेगा, ठीक? सेक्युलरिज्म क्या है? देखो, होते हैं बोर, हम भी ऐसे हो जाते हैं, कभी कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने लगता है, वो भी खोजा तो दिक्कत हो जाती है, ठीक? तो ठीक है, तो हिस्ट्री का कोई टीचर हो तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन क्लास की इन डिस्कशंस के बाद मन करता है कि किताब खोल लें। मतलब समझ रहे हो? अब जरूरी नहीं कि भाई मैग्नेट ही चुंबक को अट्रैक्ट करे, कभी कभी कील को अट्रैक्ट करे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, कील भी जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो पढ़ने का मन करने लगता है। टेक इट दैट वे। अब आप एडिटोरियल कल आप देखोगे, अगर इससे रिलेटेड 2-3 दिन में एडिटोरियल आएंगे, आपका पढ़ने का खुद से मन करेगा। अब आप उसको इग्नोर कर दोगे, फिर तीसरे दिन आप इस क्लास में भी नहीं आओगे। बात समझ रहे हो? तो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ स्पार्क कि अब काफ़ी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी, साइंस इन टेक है, ये कुछ है, इंटरेस्ट इनकलकेट करोगे तो हो जाएगा बच्चे। नाउ ठीक है, अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट प्लुरैलिटी। लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन। वो सेक्युलरिज्म ही क्या सेक्युलरिज्म जो प्लुरैलिटी को किल करे, फिर तो वो थियोक्रेटिज्म हो गया, एक ही धर्म बचे। थियोक्रेसी क्या है? जो एक धर्म को बढ़ावा देती है ना? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? प्लुरैलिटी। सेक्युलरिज्म की होड़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म के आइडिया को नेगेट कर देगा, है ना? तो वी, एंड स्पेशली इन इंडिया, वी हैव पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म से हमारा मतलब क्या है कि अगर हमारी कंट्री में कोई हिजाब पहन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? हमारी कंट्री में कोई क्रॉस पहन रहा है, ओम पहन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहनने दो, है ना? ये है क्या? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक? मतलब हम किसी को मना नहीं कर रहे। फ्रांस वगैरह में क्या है, बुर्का बैन, ये सारी न्यूज़ वहाँ पे चलती है।
अब बीजेपी कर्नाटका में ये सब लेके आई थी, क्या हुआ? पीपल आर बिकमिंग प्रोग्रेसिव इन देयर आउटलुक. डू वी एवर थिंक कि वो XYZ रिलीजन से है? हम ये देखते हैं आदमी अच्छा है, बस बात खत्म. ह्यूमैनिज्म शुड प्रिवेल रादर देन रिलीजन और एनीथिंग, है ना? तो इंसान अच्छा है, बात खत्म. अगेन फ्लोइंग फ्रॉम सेक्युलरिज्म. ठीक है. नाउ कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ समझौता नहीं करा जा सकता इस हद तक कि हमारी जो अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की गार्ड में सबकी शादी एक तरह से होगी, हर शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराना जरूरी है, ये सब चीजें हैं, राइट? लाइक आफ्टर माई मैरिज वी वर लाइक प्लानिंग टू गो आउट and then we got to know that it is compulsory to register your marriage if you want to go out, right? वो चीज़ें ठीक हैं सेफ्टी के लिए, वो सारा कुछ. बट अगर यूनिफॉर्मिटी की होड़ में आप बेडरूम तक घुस गए, सरकार वो सारा कुछ करने लग रही है जो नहीं करना, वहाँ पे गलत हो जाएगा. कितने बच्चे पैदा करो, ये सारी चीज़ें हैं ना. बाईगैमी, पॉलीगैमी, क्योंकि एक जेंडर के हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, एक जेंडर का ही इंटरेस्ट वॉयलेट हो रहा है, वहाँ पे गलत है. तो वी टॉक्ड अबाउट, लेट अस इसको एक बार वाइंड अप कर लें. सबरीमला जजमेंट मैंने बताया. देन वी वुड टॉक अबाउट एडल्ट्री. एडल्ट्री इज, थोड़ा सा उसको समझा दूंगा, वो भी इसी से रिलेटेड मैटर है. तो जुडिशरी हालांकि सेंटर को एग्जॉर्ट करते हुए आई है. सेंटर एग्जॉर्टेशन क्या होता है? किसी को कंधे से पकड़ के ये काम करो, करते हैं ना ये फैमिली में वो सब. एग्जॉर्ट करना मतलब, परसुएट करना मतलब धक्का देना. एग्जॉर्ट करना मतलब तुमने ये काम क्यों नहीं किया, कॉलर से पकड़ के, राइट? नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज मेंशन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी which are non-judicial in nature, Supreme Court has been exhorting the central parliament, union parliament, to pass a law on uniform civil code, which is not right. क्योंकि इस पे कोई मैटर नहीं बनता. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टैंड क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट्स ओन स्टैंड हैज बीन टू legitimize only that part of civic, to legalize only that part of uniform civil code or those aspects of uniform civil code which impinge upon one or the other gender's fundamental rights. ठीक है. एडल्ट्री में क्या था? एडल्ट्री का ब्रीफली बता दे रहा हूं. एडल्ट्री लॉ कौन सा सेक्शन है? 498A IPC. ठीक, सेक्शन 498. जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो यहीं पे डील कर रहा हूं. तो यू वुड बी साइटिंग दिस इन दी एग्जामिनेशन, मेंस के आंसर के लिए. कैसे करना है इसका आंसर वगैरह भी एक बार देख लेंगे. ठीक है, मान लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. सो द बॉक्स इंडिकेट्स द मैरिटल रिलेशनशिप. ठीक. Now talk about extramarital. ठीक. अब ये extramarital है, यहाँ पे भी extramarital है. We are a modern society, westernization etc. जो भी. ठीक है. Wife can have the relationship outside the marital relation only with the permission of the husband. समझ में आया? सेक्शन 498 यूज्ड टू से लाइक दिस, यानी कि प्रोपिगेशन ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी. इसके मैं दूसरे पहलू बता रहा हूं अभी. ठीक है. वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड वैरायटी ऑफ एंगल्स टू लुक एट इट. ये रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ये वाला जो हाथ है ना, ये सर से पीछे इधर जाएगा. मतलब समझ गए? ठीक. मतलब वो जैसे बैक पे हाथ रखते हैं. ठीक. तो जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स. ठीक है. मान लो ये बेंच पे बैठे हैं. ठीक. 3 लोग बेंच पे बैठे हैं, वो दिखाते हैं ना वो इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह. ठीक. समझ गए? तो दिस इज लाइक दिस वे. ठीक. नाउ इन अ वे, जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोअर
बहुत ही लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू सेंसिटिविटी टू ऑल दी स्टेटस ऑफ सोसाइटी, यहां पे हस्बैंड वाइफ को खुद बोल रहा है, यू स्लीप ओवर विद समबडी एंड दिस पर्सन विल बी गिविंग मनी, पुअर फैमिली टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, राइट? If this lady wants to complain about this in the police station, that she's been cheated upon or she's been brutally raped or something, she would need the consent of the husband. She would have to accompany husband and then the police would lodge a complaint. Got it? So here the newspapers use the word, here the wife is acting as the keep. English में keep का मतलब हो गया रखेल. ठीक है, सेक्शन 498 लुक्ड अपॉन वाइफ एज दी रखेल ऑफ दी हस्बैंड. सी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स इन हिंदी फॉर यू गाइज. जैसे मैंने पोलर समझाया वैसे मैं ये समझा रहा हूं. कीप इज द वर्ड दैट दे यूज इन इंग्लिश, बट वी हैव टू यूज इट इन इंग्लिश फॉर योर कन्वीनियंस ओनली. ठीक है, नाउ अब वाइफ, अगर हस्बैंड का कोई रिलेशनशिप है शादी के बाहर एंड वाइफ गेट्स टू नो अबाउट इट, तीसरा एस्पेक्ट, ठीक है, वाइफ गेट्स टू नो अबाउट इट, वाइफ कैन नॉट कंप्लेन. ये हिंदू लॉ का एस्पेक्ट है. मुस्लिम लॉ में तो हम सीधे शादी की बात कर रहे हैं ना, ये हिंदू लॉ का एस्पेक्ट है. बात समझ रहे हो? हिंदू क्या मतलब सारे लॉज में ये अलाउड था. इजंट इट एन इनजस्टिस विद द विमेन? ठीक है, अब ये कंप्लेंट लिखाना चाहते हैं इसकी, अपने हस्बैंड की या किसी चीज की, दिस इज नॉट अ ग्राउंड. Worst part, if she wants a divorce on this aspect, not allowed. Patriarchism quite visible. ठीक. Now if he wants to file a complaint that when he was roaming around with her, the extramarital, his wallet or phone got stolen और phone का OTP पासवर्ड जो भी ले लिया और लूट लिया, जो भी करा, ठीक, कुछ नहीं कर सकता बिना वाइफ के. ये सारी कंप्लेंट कर सकता है यहाँ पे, ठीक, अकेले ही. तो ये क्या हो गया? इनइक्वालिटी इन मैरिटल रिलेशनशिप. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एडल्ट्री यानी कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस को देखते हुए वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ कैन नाउ have extramarital, husband can have extramarital. Husband could already have that, they could already do. Now wives can also, ठीक, provided that this can be a valid ground for divorce also. Now, ठीक है, he could also seek divorce on the pretext that she is having an extramarital. Done. Provided that either of them, because मान लो कपल A है, कपल ए में हस्बैंड का रिलेशनशिप है, कपल बी है, कपल बी में वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक. कपल ए में हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल से तंग आके वाइफ ने सुइसाइड नहीं किया, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अगर सुइसाइड करा तो क्या हो जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड. होमिसाइड क्या होता है? सुइसाइड इज योर ओन किलिंग, होमिसाइड इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. कल्पेबल होमिसाइड amounting to murder. This would be treated as wife's murder. वाइफ के लिए उतनी suffocating circumstances create कर दी हस्बैंड ने कि उसने सुइसाइड कर लिया. Got it? दूसरा एस्पेक्ट, कपल बी, वाइफ हैज गॉट एन एक्स्ट्रा मैरिटल, पहले वो पनिशेबल था, वाइफ वाज नॉट अलाउड टू. विद द नॉलेज ऑफ द हस्बैंड, विद द कॉन्सेंट ऑफ द हस्बैंड शी कुड. गलत है ना? या तो दोनों वे में अलाउड नहीं हो. अब इफ वाइफ इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल and husband gets to know about it, husband can complain, can file a divorce suit, ठीक है. But if the husband commits suicide because of this, the suffocating condition gets created and he feels like life में कुछ भी नहीं बचा ये सब, if he commits suicide then wife would be booked for culpable homicide amounting to murder, ठीक है. ये ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में यही सब लगता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. जैसे किसी को कोई लड़का हैरिस कर रहा है, लड़की कोई हैरिस कर रहा है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो फुटेज है, रिलीज कर देंगे, सुइसाइड नोट में कुछ लिख दिया, ये सारा क्लॉज यहीं पे लगता है, ठीक है. उसमें रीजनेबल टाइम वगैरह है, हम लीगल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, टाइम वगैरह होता है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई लास्ट फोन कॉल थी तो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ यही कॉल मानी जाएगी. गॉट इट?
interestingly, right? Now, ठीक है, so these kind of things are there. Now when it comes to sanctity of, you know, this thing here, sanctity of marriage here, the sanctity of marriage is getting affected, है ना? मैरिज की कोई सैंक्टिटी नहीं बच रही. तो ये कब से आया? अगस्त 2017 से जुलाई, अगस्त 22 2017 राइट टू प्रिवेसी दे दिया. राइट टू प्रिवेसी, दिस इज अ प्राइवेट अफेयर. सो हस्बैंड डज नॉट हैव एनी राइट और वाइफ डज नॉट हैव एनी राइट टू लुक इनटू व्हाट अदर इज डूइंग. ठीक है, अब इससे होगा क्या? स्टीव जॉब्स, he was not aware about who his biological father is. Bastards. मतलब समझ में आया? तो we are headed towards that kind of a society, even though he was a great man और ये सब ठीक, but this is the reality of American world. मतलब समझ रहे हो? तो अब ये चीजें जब हो रही हैं, यहां पे हमारे मुद्दे का भी क्या टॉपिक है कि जनरल लॉ सीआरपीसी और सीपीसी का भी सेक्शन 498 रिफाइन किया है. कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू, कोर्ट ने जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, अगर एडल्ट्री दोनों एक तरफ अलाउड है तो दूसरी तरफ भी अलाउड कर दी. ठीक, तो ये एस्पेक्ट जनरल लॉ का भी टच किया है, जनरल लॉ का. तो रिलीजियस लॉ का क्यों नहीं? रिलीजियस लॉ का भी किया है. ट्रिपल तलाक, ओनली मोरालिटी दैट वुड प्रिवेल इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. वो ट्रिपल तलाक में भी यही चीज बोली थी, इसमें भी. लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड तब गड़बड़ा जाता है, बैलेंस टिल्ट हो जाता है या हैपहैज़र्ड हो जाता है, जब वही कोर्ट सरकार को कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करो. जब कोर्ट खुद इन मुद्दों पे सिर्फ वहां तक जा रहा है जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात है, विमेन के, फीमेल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है. अगर वही कोर्ट सरकार को ये गाइडलाइन या डायरेक्टिव नहीं, गाइडलाइन होता है सिर्फ एक सुझाव देना, ठीक है, जब वही कोर्ट सरकार को ये बोले कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं पास कर रहे हो, तो गलत हो जाता है. क्योंकि तुम खुद जो डायरेक्टिव्स दे रहे हो, तुम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में दे रहे हो, है ना. दूसरा गलत क्यों हो जा रहा है? क्योंकि 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पास करने के लिए बार बार एग्जॉर्ट नहीं कर सकते स्टेट को, पार्लियामेंट को. समझ में आया? पार्लियामेंट को बार बार कहने का, वो तो पार्लियामेंट का डोमेन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स. लेजिस्लेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी एज टू व्हेन टू पास सच अ लॉ और व्हेन नॉट टू. लेजिस्लेचर इज द मिरर इमेज. इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटीज thought process at any given point of time. If the society would be ready, then they would pass it, but they drag their feet because of political benefits and all. समझ में आ रहा है अब ये? Now, अब वापस आ रहे हैं यहाँ पे 21st लॉ कमीशन पे. पर्सनल लॉज वर प्लेस्ड. अब यहाँ पे एक और रीजन दिया है, हाउ टू रीड द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन और डिबेट्स. डिबेट्स में भी आगे हम देखेंगे. अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंट्री 5 है कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में कब मैटर दिया जाता है? हाँ, और कोई कारण इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए? डाइवर्सिटी. हो सकता है एक स्टेट में ये जो रिलीजियस लॉज वाला मैटर है, एक स्टेट में पर्सनल लॉज अलग हों. केरला में अलग हैं भाई, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, नागालैंड में अलग, है ना. तभी तो वो कॉन्करेंट, जहां पे यूनिफॉर्म पॉलिसी अक्रॉस द नेशन चाहिए, वहां पे मैटर कहाँ दिया जाएगा? नेशनल लिस्ट, सिंगल करेंसी, सिंगल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, राइट. तो वो मैटर्स वहां पे दिए हैं. द वेरी फैक्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल लॉज इज गिवन इन कॉन्करेंट लिस्ट tells us about the outlook of, mental outlook of Constituent Assembly about differences in personal laws across various states.
आइसिंग इट अप और स्प्रूस अप करते हैं इसको, स्टेट्स इन इंडिया आर कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज अक्रॉस द स्टेट्स इज डिफरेंट. लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन और कल्चर. ठीक, कल्चर इज इंटरट्वाइंड विद रिलीजन. तो जब स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पे बनी हुई हैं और उन स्टेट्स को अपने अपने धार्मिक मैटर्स को अलग तरीके से डील करने के लिए एंट्री 5 के जरिए से गुंजाइश दी जा रही है, तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ जस्ट वन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल ऑफ द कंट्री? समझ में आया? समझ में आ गया ना? ये लॉजिक्स हम ऐसे ढूंढते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में से. कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर वैलिड, तो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट ले लिया. ठीक है, डन हो गया. नाउ द डॉक्यूमेंट, दो 21st लॉ कमीशन के डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि दैट देयर कुड बी डाइवर्स मीन्स ऑफ गवर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लॉज सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग अ सिंगल सेट ऑफ रूल्स ऑन सोसाइटी. ठीक है, और ये कह रहे हैं देयर कुड बी डाइवर्स मीन्स ऑफ गवर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लॉ. क्या है पर्सनल लॉ? एक व्यक्ति के निजी जीवन से डील करने वाला लॉ. ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इफ आई एम अ मुस्लिम तो वो पर्सनल लॉ मेरे ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि मैं उस धर्म को मानता हूं. ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉ, अगर मैं हिंदू हूं तो वो मेरे ऊपर अप्लाई होगा. ठीक है, दिस वुड एंटेल द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस. बट मेरे धर्म की प्रैक्टिस के नाम पे मैं अपनी लाइफ में आने वाले किसी पर्सन के राइट्स का हनन नहीं ना कर सकता, तो वहां पे स्टेट आ जाएगा. समझ में आया? गॉट इट? Especially those that affect women and adoption of some overarching norms rooted in equality. And adoption of some overarching मतलब broad norms जो equality की notion में, equality के idea में rooted हैं. Property, right to do job, ये सारा कुछ. ठीक है, right to do, right to work, ये सारा कुछ. Done? Clear? Commission counted. अब देखो उस दिन हमने क्या कहा था जब ये आइडिया को हम क्लास में लिख रहे थे, आर्टिकल 371 ने कौन सा फेडरलिज्म? 371 ABCD उस दिन तो लिखवाया था. हाँ, कोऑपरेटिव का ही एक पार्ट लिखवाया था. क्या लिखवाया था? देखो पीछे पन्ने पर तो जल्दी. डिफरेंशिएटेड नहीं, एक अच्छा सा वर्ड था, डिफरेंशिएटेड फेडरलिज्म से रिलेटेड था वो. इनइक्विटस नहीं. आप भी थे उस क्लास में? नोटबुक अलग है, नोटबुक अलग है, आपकी सेम है ना? ठीक है, आगे चलते हैं. देखो हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए अपने अपने अलग अलग आर्टिकल हैं. 371 A, B, asymmetrical federalism. There is no symmetry in the federal powers to various states because in these states there are different types of people who live. To better appreciate the differences in these people, Nagaland में अलग, मणिपुर में अलग. To appreciate the differences amongst the people, asymmetrical federalism is given. नागाज में जब मैं ये पॉइंट पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था? वहाँ पे मेट्रियार्की है, मेट्रियार्कल सोसाइटी है. ठीक है, पति प्रधान पौरुष प्रधान समाज नहीं है, नारी प्रधान है. ठीक, तो ये किसके पार्ट है? पर्सनल लॉ के. तो जब हमारे यहाँ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है तो एसिमेट्रिकल सिविल कोड क्यों नहीं? हाँ, बस सिविल कोड में एक बैलेंस शीट बनाओ कि भाई ये प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन है, इनको हटा दो, है ना. एसिमेट्रिकल सिविल कोड वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड. एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म एरो, एसिमेट्रिकल सिविल कोड.
Rajat, are you watching the class, बच्चे? Done? These could act as handicaps. This could act as an impediment, hindrance in the way of uniform civil code. भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने जा रहे हो, पर्सनल लॉज को तो चलो किल कर ही दोगे. You would run roughshod over the personal laws, but how would you run roughshod over the constitutional guarantees given to these states? उनके वहाँ पे तो ट्राइबल राइट्स अलग ही हैं. उनका नॉर्मल जुडिशरी में केसेस भी नहीं जाते, वो आपसी ग्राम पंचायत अपने लोकल कोर्ट्स के जरिए मैटर्स को सुलझा लेते हैं, या मैटर्स का सुलझे नहीं सुलझे और उलझ जाएं बट कोर्ट में नहीं जाएंगे. तो अब ऐसे केस पे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओगे? समझ में आ रहा है? क्लियर? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का एंगल, जब कभी ऐसे क्वेश्चन पे विवादित कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेटेबल मैटर है, ठीक है, सम मैटर विच इज नॉट सो इजीली अनटैंगलेबल, गुत्थी सुलझ नहीं रही, उस क्वेश्चन को आंसर करते हुए क्या चीज का हवाला दोगे? लिख लेना इनको. वाइल राइटिंग डन. एग्जाम्पल्स EGS, EXAM, PLES. ठीक है. जब वाइल राइटिंग एनी आंसर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और इंट्रैक्टेबल इश्यूज, लिख लो skeletal points while writing any answer on constitutionally intractable issues. Constitutional/intractable. ठीक है. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आगे हम डील करेंगे. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. So, members of the assembly took starkly there was a lot of polarization among members themselves. अलग अलग हो गए थे. ठीक है. लेफ्ट राइट विंग ये सब होने लग गया. took starkly contrasting stances. अपना अपना पक्ष जो रख रहे थे, उनका पक्ष अलग अलग contrasting direction में जा रहा था. ठीक है. some felt that India was too diverse a country for UCC. When country is diverse, how can you make it uniform, and that to their personal laws? Especially when creating such a country, you had to create a symmetrical federalism. And in a country where states are organized not on the basis of geographical area, कि ये hilly area तो हिमाचल हो गया, ये पूर्वांचल हो गया, नहीं, states are created on the basis of language. Language is a part of culture. ऐसी country में एक set of laws, वो भी जो personal level पे आघात कर रहा हो, नहीं बन सकता है ना. So member Naziruddin Ahmad from Bengal argued that certain civil laws in all the communities were inseparably connected with religious beliefs and practices. So this will become one of our points.
जब हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लिखेंगे, दिस बिकम्स वन ऑफ आवर पॉइंट्स, आई विल बी डिक्टेटिंग इट, ठीक है, आई विल बी डिक्टेटिंग दिस पॉइंट. ही फेल्ट दैट यूसीसी वुड कम इन द वे ऑफ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 वुड कम इन द वे ऑफ यूसीसी. आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. सो टू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहां पे आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है. यहां पे 19 गलत हो गया. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 19, आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन. अब धर्म के रास्ते में अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओगे, एक तरफ तो आप आर्टिकल 25 में ये कह रहे हो कि आपको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का पूरा राइट है, प्रोफेस करने का भी राइट है. प्रैक्टिस करना इज या तो बंद कमरे में कर रहे हो, जब कोई आया फटाफट से शांत हो गए कि बताना ही नहीं है कि ये हमारा रिलीजन है, या फिर अब प्रोफेस क्या होता है? प्रोफेस करने का मतलब ये है आउटवर्डली सिंबल्स एंड सिग्नल्स, some objects you are wearing which signifies that you belong to a particular community, ठीक है. For example, when we go to particular areas of Delhi, ठीक है, if you belong to a particular religion, like if I am wearing ring and I sometimes go to some area, Jama Masjid area या कुछ, everybody would start staring at you. Likewise, if they go to some Mathura, Vrindavan or some area or या Haridwar, they would be stared upon. पोलराइजेशन है, ठीक है. तो बात क्या है? प्रोफेस करने का मतलब यह है कि अगर मेरे को टीका लगाना है, तिलक लगाना है, मैं लगा सकता हूं, प्रोफेस करना. लेकिन अब उस पर आप लॉ बना दोगे, कितना ब्यूटीफुली लिखा है, कितना सिंपल वे में. सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल लॉज वुड एंटर इनटू, दे आर कनेक्टेड विद रिलीजियस बिलीव्स. अब यू वुड एंड अप हर्टिंग द रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है. अब जैसे सैंक्टिम या मैरिज के बंधन में बंधने के लिए हिंदुइज्म में, सिखिज्म में 4 फेरे होते हैं. अब आप बोलो कि नहीं 18 ही करेंगे, वहाँ पे नहीं जाना है ना. मतलब ये बोलो कि नहीं इतने फेरे लेने ही हैं, राइट. अब ऐसे तो मोदी जी ने भी नहीं डिवोर्स लिया, बात समझ रहे हो तुम? वहाँ पे सीधे चल दिए. भाई घर तो जाओ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू गो बैक टू हिज हाउस, राइट. अब वहाँ पे अगर दोनों में कॉन्सेंसस है, तो कोई बोले कि कोई PIL डाल दे कि भाई देश के प्रधानमंत्री सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल बाय नॉट केयरिंग फॉर हिज वाइफ, गलत नहीं हो जाएगा? उस एरिया में नहीं जाना. बात तो यही है ना, बिकॉज देयर इज अ कंसेंसस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट. तो वो वाले एस्पेक्ट्स जो प्योरली रिलीजियस मैटर्स हैं. अब डाउरी, इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन, ठीक है. फादर फील्स बेटर, इमोशनली गुड व्हेन ही गिव्स सम गिफ्ट्स टू द parting daughter. अब bone of contention is if it is being demanded or if it is being voluntarily given. No father would say that it is being demanded, right? No IAS officer would say that I demanded the same. They all take it. समझ में आ रही है ना चीज? अब बात यहां पे आ जाती है कि ये रिलीजियसली सही है या नहीं. कोई वो पुराने ग्रंथ उठा के बैठ जाते हैं कि उसमें लिखा है, अब वो रिलीजियसली उसको वैलिडेट करने लगते हैं, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सती, जौहर, तो वो सारी चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है. तो उसमें नहीं जाना बस. नाउ विच गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी. यानी कि स्टेट हैज द राइट. हेल्थ, इफ समबडी इज बर्निंग हरसेल्फ, सती, हेल्थ, समझ में आया. मॉरलिटी, एडल्ट्री एज अ रिलेशनशिप, एडल्ट्री एज अ प्रैक्टिस, मॉरल्स. बट मॉरल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. कहीं सोसाइटी में मॉरलिटी सही है, कहीं गलत है. कहीं एक उंगली काटना पाप ही नहीं है, पूरा तो छोड़ दिया, एक उंगली तो काटी है ना. कहीं एक नाखून तोड़ना भी गलत है. पुलिस अगर यहाँ पे टॉर्चर कर रही हो, वो नाखून के बीच में कील वील घुसाते हैं, वो जो भी करते हैं ना, वो भी गलत है, एंटी ह्यूमन राइट्स है. तो इसलिए राइटर ने पीछे हमने क्या लिखा? indisputable arguments on human rights to reconcile
ऐसी प्रैक्टिसेस को रेकनसाइल कर। कॉन्टूअर समझ गए, लिख लोगे अपने वर्ड्स में, मतलब समझ रहे हो ना। कॉन्टूअर्स, वही चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे कहना क्या चाह रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर POMH रटवाया था क्लास में, POMH पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। जब आप रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हो, कोई बकरीद की यात्रा या कुछ निकाल रहे हो, कोई जुलूस निकाल रहे हो, रथ यात्रा निकाल रहे हो, तो पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। ये तो दूसरे आर्टिकल में हम नहीं जाएंगे अभी, यहां पे कंसर्न है मोरालिटी एंड हेल्थ, है ना। जब आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो, अरे किसी दूसरे की तो छोड़ो, किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट क्या, स्टेट ये कहता है कि अगर तुम संथार लेके बैठ रहे हो कि मैं अब मेरा पर्पस पूरा हो गया, यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म, मैं चला, राइट, तो भी स्टेट इंटरफेयर करेगा। तो तुम्हें स्टेट अपनी जान नहीं लेने देता, तुम दूसरे के साथ अत्याचार कैसे कर लोगे। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ KRS। नो, डॉक्ट्रिन ऑफ KRS क्या है, स्टेट इज केयरिंग फॉर अस, समझ में आया। तो उस आधार पे हस्बैंड छोड़ो, स्टेट खुद का बैंड नहीं बजाने दे, है ना। तो जब स्टेट खुद के अगेंस्ट आघात नहीं करने दे रहा, आपके भले ही कितना प्राइवेट अफेयर हो, कितना ही क्लोज अफेयर हो, उसमें भी क्यों करने देगा। Got it? While this member Naziruddin Ahmad was not against the idea of uniform civil code, he argued that the time for that had not come yet, adding that the process had to be gradual and not without the consent of the concerned communities. आज के एडिटोरियल में भी ये लिखा है वॉलंटरी अडॉप्शन। लिखो एक पॉइंट, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड should be implemented in a manner that it is voluntarily adopted. अब देखो, जब ऐसे इश्यूज होते हैं जो इंट्रैक्टेबल हों, इजीली रिजॉल्वेबल ना हो, यानी कि इंट्रैक्टेबल हों, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें आंसर कैसे लिखना है, मतलब, और ये प्रैक्टिकल भी है। एक चीज तुमने अप्रिशिएट करी होगी, because of better sensitization of Indian society about our fundamental rights, better awareness about our fundamental rights, and because of better prevalence of civic sense amongst Muslim women, when the idea of triple talaq was brought about, Muslim women themselves wanted this idea to be implemented, even as if we look back 50 years, every woman, every wife, every sister would be quite afraid of going against the will of male members. But in this case, they voted in leaps and bounds in favor of Yogi Sarkar in BJP, of BJP in UP. Why? Because they liked this idea. They liked abolition of triple talaq. How did it come about? कैसे आया ये चेंज, ये बदलाव कैसे आया? सेंसिटाइजेशन। समझ रहे हो, जब चेंज नीचे से आता है तो बेटर रिसेप्टेबल हो जाता है, इट इज वेल रिसीव्ड, है ना। जब आप थोपते हो तो इट इज रिपेल्ड। तो इसलिए हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म में, जैसे मदरसास के ऊपर बीजेपी सरकार ने क्या किया महाराष्ट्र में, कि मदरसास जो डिग्री देते हैं, जो भी प्रमाण पत्र नहीं मिले, दैट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़। जो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है उसको क्या कहते हैं इस्लामिक, उसमें टर्म है एक, है ना। जो मदरसा से पास आउट होते हैं बच्चे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अब उस सर्टिफिकेट को हायर अथॉरिटीज़, एजुकेशन अथॉरिटीज़, यूपीएससी वगैरह रिकॉग्नाइज करेंगी, तभी वो यूपीएससी के लिए एलिजिबल होगा। पासपोर्ट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करेगी तभी वो एलिजिबल होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा, फडणवीस सरकार जो बीजेपी की थी, उन्होंने बोला मदरसाज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके 10th के 12th के, अगर मदरसाज में साइंस एंड टेक और ऐसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे
तो मदरसास के द्वारा दी गई डिग्री नहीं मानी जाएगी। अब क्या हुआ, मदरसास जो पढ़ा रहे थे उन्होंने वो पढ़ाना बंद कर दिया, हड़ताल। मतलब समझ रहे हो, इम्पोज जब करोगे तो देयर वुड बी बैकलैश, राइट। अब जब खुद यूपीएससी ने क्या किया उस केस में, पीछे कुछ सालों में आप देखोगे बहुत सारे टॉपर्स जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कश्मीरी पीपल एंड टू द मुस्लिम कम्युनिटी। क्यों? टू सेट द रोल मॉडल फॉर देम। एक के बाद एक निकलने लगे फिर, है ना। 2015 वो सब जो भी अथर आमिर और वो सब, है ना। उससे पहले शाह फैजल 2010 रैंक 1। सेम केस ऑफ गर्ल्स, देखो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है ना। 3 फ्रीक्वेंट हर साल टॉपर लड़की आ रही है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि निकम्मे हो गए लड़के, ठीक। पॉइंट क्या है कि कुछ ना कुछ बायसनेस थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, बिकॉज रैंक 1, तुम सब में भी एक जिज्ञासा आ जाती है कि मैं भी एक दिन बनूंगी, आती है ना। तो पॉइंट क्या है, जो रूरल एरिया में लड़कियां हैं उन तक कितना मैसेज जाता है, क्योंकि मीडिया रैंक 1 को उछाल उछाल के फेंकता है ना। रैंक 1 इतने सारे टॉपर के वो चैनल ही बना दिए इशिता किशोर नाम के। सो दैट गोज फार एंड वाइड। अब यहाँ पे वो क्या है, प्रोग्रेसिव अप्रोच है। रिग्रेसिव अप्रोच क्या है, तुम थोप रहे हो चीज को, इम्पोज करोगे। डेमोक्रेसी में इम्पोजिशन एंड डेमोक्रेसी आर 2 वर्ड्स दैट डू नॉट गो टुगेदर, राइट। अब यूपीएससी ने एग्जाम्पल सेट किया, अब वो अपने आप बोलेगा कि मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को मदरसा में नहीं जाना। अब पिताजी कब तक रोक लेंगे, वो गया यहाँ से मदरसा, पहुँच गया स्कूल, जिसे करना है उससे तो करना है ना। अब करते करते प्रोग्रेसिविटी आने लगी। अब वही बच्चा जब पढ़ के आता है, पिताजी जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं वो आउटलुक को सब्सक्राइब नहीं करते, माँ को वो जेंडर जस्टिस की कहानी सुना रहा है घर बैठ के। माँ हुई एम्पावर, ठीक। और समझ रहे हो, अब वोट देने गए तो उन्होंने वोट दिया उस पार्टी को जिसने ट्रिपल तलाक एबॉलिश करने की मुहिम रची। समझ रहे हो ना। दिस इज हाउ द चेंज फ्रॉम द ग्राउंड कम्स, और उसी चेंज की जरूरत है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी। तुम बोलो कि रिवर वाटर इंटरलिंकिंग, ये मैंने उस टाइम भी बताया था क्लास में। रिवर वाटर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट, पानी के प्रति लोगों को जागरूक करना, कैसे कर लोगे? अर्थ के प्रति कैसे जागरूक करते हो? वॉलंटैरिली ब्लैक आवर, अर्थ आवर बोलते हैं ना, 1 घंटा लाइट बंद, तो समझ में आता है बिजली वेस्ट नहीं करनी। वैसे ही वाटर आवर, एक दिन पानी नहीं आए सबको समझ में आ जाएगा, है ना। वॉलंटैरिली। अब तुम बोलो कि सरकार पानी काट देगी, खून से नहला देंगे, समझ रहे हो। डेमोक्रेसी यही है ना। जाट आंदोलन और ये सब क्या करते हैं, यहाँ पानी बंद कर देते हैं, वो सब कर देते हैं, वो सब चीज़ें नहीं चलती। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, इस रिफॉर्म में भी सेंसिटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल थ्रू एजुकेशन, ठीक है। फिर मीडियम टर्म में इसको वॉलंटरी करो, उसके बाद इसको कंपल्सरी करो। पुरानी कारों के साथ, केबल टीवी के साथ यही किया गया है। पहले एनालॉग केबल टीवी चलता था, टाइम दिया कि अब कर लो, अब कर लो। जब नहीं किया फिर बोले कि फाइनली अब सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं। कारें रिटायर करने के लिए 15 साल दे रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम से लगा दोगे। पता तो सब है कि कैसे काम करना है ना, लेकिन जानबूझ के ऐसे इश्यूज पे रिलीजियस पोलराइजेशन करी जाती है ना। पुराने नोट 30 सितंबर तक वैलिड हैं अभी 2000 वाले, और ये एकदम से लगाने की बात हो रही है। समझ में आया? चलें आगे। जब कोई इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहे हो तो ऐसे ही करोगे यार। रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हो, लॉजिक पे चलता है यूपीएससी। तुम्हारे पास कोई पुराना फ़ोन है, पैसे इकट्ठे करने शुरू करते हो पैरेलली, उतने में उसको रिपेयर कराते हो, मीडियम टर्म तक चलाते हो, लॉन्ग टर्म में बर्थडे का वेट करते हो, फिर लेके आते हो। वैसे ही यहाँ पे है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इम्पोज नहीं कर सकते। फार्म लॉ रिफॉर्म, फार्म रिफॉर्म्स, एफसीआई रिफॉर्म नहीं कर सकते ना एकदम। रिटायरिंग ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एकदम से कैसे स्विच कर लोगे, नहीं हो सकता। ग्रेजुअल ट्रांजिशन, पहले ग्रीन एनर्जी उतनी कमेंसुरेट आ जाए, फिर और एनर्जी मिक्स में और भी वेरिएंट्स लाए, विंड मिल और जियोथर्मल एटसेट्रा, उसके बाद लॉन्ग टर्म में कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट विल बी रिटायर्ड, है ना। ठीक, सो दिस इज देयर।
अब जुडिशरी पे आते हैं। इन शाह बानो केस 1985, जस्टिस YV चंद्रचूड़। अब ये चंद्रचूड़ सर कौन है? फादर ऑफ द प्रेजेंट CJI, ठीक है। तो he lamented that Article 44 has remained a dead letter because there was no evidence of any official activity for framing a common civil code for the country, ठीक है। अब हम इनको गलत ठहरा सकते हैं, बट इनके कहने का मतलब ये नहीं था कि while making a uniform civil code you should venture into the strictly personal areas, ठीक है, टू मच इनटू दी पर्सनल एरियाज। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम बनाना तो शुरू करो, ठीक है। अब क्रिटिसाइज करना तो हम ये बोलेंगे कि भाई जुडिशरी कौन होती है, क्योंकि ये तो आर्टिकल 44 है। पॉजिटिव लिखना हो इसी के बारे में तो ये है कि फिर ऐसे तो जो आर्टिकल 21A बन के राइट टू एजुकेशन बन के आज सामने आया है, वो भी जुडिशरी ने ऐसे ही बार बार सरकार को फटकार लगाई थी। तो सरकार ने राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा 45, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 को कन्वर्ट कर दिया आर्टिकल 21A में। तो ये तो जुडिशरी का काम है कि सरकार को टाइम टू टाइम, पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम उनकी जिम्मेवारी याद दिलाते रहना। दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। क्रिटिसाइज की भाई जुडिशरी बार बार क्यों कह रही है, ठीक, लेकिन फिर पॉजिटिव साइड भी पता हो, ठीक है। बिकॉज फ्रेमिंग अ कॉमन सिविल कोड फॉर द कंट्री, ही वांटेड अ बिगिनिंग टू बी मेड इन दैट डायरेक्शन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव एनी मीनिंग। डन। द कोर्ट, अब ये कौन सा केस था? शाह बानो केस, कौन बताएगा? शाह बानो केस की स्टोरी क्या है? शाह बानो वाज अ वुमन हु वाज सीकिंग एलिमनी फ्रॉम हर डिवोर्स्ड हस्बैंड, ठीक है। तो अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फटकार लगाई, किसकी फेवर में फैसला आया था? शाह बानो, ठीक। तो उन्होंने क्या किया? राजीव गांधी सरकार ने माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए मुस्लिम्स की फेवर में कुछ प्रावधान बना दिए, इसको लेजिटिमाइज करने के लिए, ठीक है, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक पास कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वुड होल्ड गुड। एंड आर्टिकल 13 बताया था ना फंडामेंटल राइट्स में, आप तो पढ़ोगे अभी। फंडामेंटल राइट्स में जब हमने बताया था कि पर्सनल लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ना करने के, पर्सनल लॉज को सेम वैसे अपहोल्ड करने के लिए ये बोला गया कि आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉज नहीं आती। किसने ये लॉ इंप्लीमेंट करा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा राजीव गांधी सरकार 1985 के बाद, ठीक है। क्या करा कि भाई पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आती, यानी कि पर्सनल लॉ पे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या कह रहे हैं? जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। शाह बानो को एलिमनी या कॉम्पेंसेशन ना मिले और मुस्लिम समाज के जो मर्द हैं उनको वो खुशी होगी कि कांग्रेस ने हमारे लिए काम किया, वो उसको वोट देंगे, इसलिए ये किया गया था। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ he wanted a beginning to be made. Now the court also called on the government to implement UCC in 1995 Sarla Mudgal judgment, as well as in Paulo Coutinho versus Maria Luisa Valentina Pereira case, ठीक है। हमें सिर्फ उतना लिखना है, पोलो कोटिनो मारिया लुइजा केस, ठीक है, ज़्यादा तुम्हें नहीं लिखना, उतना बहुत है। 2019 का केस है, ठीक है। सो इसमें भी कोर्ट ने ये कहा सरला मुदगल जजमेंट, सरला मुदगल भी लिख लोगे यार तो भी बहुत है, 1995, वैसे ये 2019 का है, थोड़ा रिसेंट हो जाता है। नाउ इन केशवानंद भारती केस 1973, Justice Sikri, even after contending that no court can compel the government to lay down uniform civil code, stated that a UCC is essential, desirable in the interest of the integrity, ठीक है। तो अब इस केस का नाम थोड़ा सा लिख लो, पोलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइजा। तो जुडिशरी ने क्या कहा है वो भी हमने लिख लिया। अब यहां पे हम पता है क्या लिखेंगे? रिफॉर्म लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, लिख लो, रिफॉर्म लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर अ country as diverse as India, for a country as diverse as India,
for a country as diverse as India, requires consensus building. Requires consensus building. Which can start from changing the curriculum of minority educational institutions so as to sensitize the future generation. So as to sensitize the future generation about gender equality and to adopt a facilitatory approach for enabling the progressive sections of facilitatory approach for enabling the progressive sections of society to voluntarily adopt various aspects of यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, लिखने के नहीं है यहाँ पे. क्या है, जैसे इफ़ अ कपल इज़ गेटिंग द मैरिज रजिस्टर्ड, ठीक है, तो LPG सिलेंडर और वो सारा कुछ के लिए वो एलिजिबल हैं. ठीक है, अगर कोई कपल बायगैमी में कोई पर्सन जा रहा है, दैट पर्सन वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस. ठीक है, देन houses under Pradhan Mantri Awas Yojana are already in the name of the women, so giving them financial security, right? Even if the husband ditches them, or even if the husband wants to manipulate or suppress the voice of the women, so she has got a financial security. वो बोलेगा घर से बाहर निकल, बोले घर मेरे नाम पे है, तू निकल. मतलब समझ में आया? So that is the progressive approach which we are already adopting to an extent, right? CBSE normal सा change है. In the CBSE certificates, the name of the mother is written as the guardian. समझ रहे हो? पैन कार्ड में अगर आप कोई चेंज करवाते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है, यू वांट टू टेक फादर्स नेम और मदर्स नेम एज द नेम दैट वुड अपीयर ऑन द पैन कार्ड. ये सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं. टैक्स रिबेट फॉर विमेन फाइलिंग रिटर्न, है ना, प्रेरोगेटिव टू विमेन इन मनरेगा, वो सारा कुछ. ठीक है, उससे क्या होगा, सेंसिटाइजेशन बढ़ेगा, राइट. फिर ये रिफॉर्म लेके आओगे तो वो रिसेप्टिविटी होगी, अवेयरनेस हो सोसाइटी में, वो सारा कुछ ना हो. तो ये हो गया केशवानंद भारती के प्रेजेंट सिनेरियो. लुकिंग एट द कोडिफाइड पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया. अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ना इस लॉ में, इस आर्टिकल में भी एक दो चीज़ें थी कि अभी हमारे पास एक कॉमन लॉ ही नहीं है. ठीक है, सभी रिलीजन्स के अडॉप्ट करने के लिए एक लॉ लेके आओ कि वो वॉलंटरली उसको अडॉप्ट कर लें. कॉमन लॉ, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म जो भी है. ठीक है, तो जब ये कॉमन लॉ होगा, जब ये इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे से तभी हम ये कहेंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो दो कि हाँ इस लॉ में कौन से एस्पेक्ट होंगे. चाइल्ड मैरिज नहीं होगी 18 ईयर्स वाली, जो आज के एडिटोरियल में पॉइंट्स थे. ठीक है,
A uniform civil code for the entire country is indeed a lofty goal. कोई ऐसा गोल जो बहुत ही बड़ा हो. But the question whether introducing one for all the aspects, introducing one for all the aspects of personal law would impinge upon the freedom of religion. Article 25 वो freedom of religion को affect करेगा. ठीक. Has been a part of debate. Dr. B.R. Ambedkar viewed it as desirable, but favored its being voluntary. Dr. B.R. Ambedkar ने क्या कहा? Voluntary रहेगा, impose नहीं करेंगे. जिसको adopt करना हो कर लो. ठीक. Now, it is possible that a uniform code may be adopted without offending any religion, but the concept evokes fear among the sections of minorities because of the past incidents of minority suppression, नसबंदी, ये सारे जो प्रोग्राम्स करे गए. ठीक है. that their religious beliefs seen as a source of their personal laws may be undermined. अब ऐसे volatile times में a common code will inevitably be seen as an imposition by the majority, क्योंकि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है. IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2014 के बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि कंट्री में कम्युनल अपहेवल या कम्युनल रिफ्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं. ठीक है. तो इसमें एक लिख लो जहाँ पे हमने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स वगैरह लिखा है ना, पेइंग हीड टू दी सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस. ठीक है. अब ऐसे टाइम्स में कॉमन लॉ लाना गलत हो जाएगा. ठीक है. बेसिक रिफॉर्म से शुरुआत करते हैं. मैं इन बेसिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं. एक कॉमन लॉ कि कोई भी धर्म हो, 18 मिनिमम एज फॉर दी गर्ल चाइल्ड, 21 मिनिमम एज फॉर दी बॉय टू गेट मैरिड. ठीक है. और क्या कहा इसमें? नो फॉल्ट मैरिज. सच है. यहाँ पे 18 एज द मैरेबल एज अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज एंड जेंडर्स. अब यहाँ पे तो ये भी कह रहे हैं कि 21 लड़के की भी नहीं, सबकी 18. ठीक है. देन इंट्रोड्यूसिंग अ नो फॉल्ट डिवोर्स प्रोसीजर. नो फॉल्ट डिवोर्स प्रोसीजर क्या होता है? बिना किसी दूसरी पार्टी की रॉन्ग डूइंग दिखाए. ठीक है. इसको बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट. ठीक है. कि 6 महीने अलग अलग रह रहे हैं, या फिर ये दिखाना होता है इररिपेयरेबल डैमेज टू मैरिज, और ये सब दिखा दिया. ठीक है. कि अब दोनों साथ नहीं रह सकते. तो उस केस में अब इसमें क्या होगा कि नो फॉल्ट डिवोर्स होगा तो एलिमनी का क्वेश्चन नहीं उठ रहा. ना मेल मेंबर के ऊपर बर्डन है ना फीमेल के ऊपर, दोनों अलग, अपना अपना रास्ते अलग. ठीक है. एंड अलाउइंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ ये इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. रिट्रीव नहीं किया जा सकता अब. ठीक है. सो एंड हैविंग कॉमन नॉर्म्स फॉर पोस्ट डिवोर्स डिविजन ऑफ एसेट्स वर अदर मैटर्स द प्रीवियस कमीशन लॉ कमीशन थ्रू अप फॉर द डिबेट. तो इन पे पहले बेसिक लॉ बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे से जो आइटम्स इस लॉ में होनी चाहिए, जो पर्सनल लॉ का पार्ट हैं, लेकिन अभी उन पे कॉन्सेंसस नहीं उमड़ रहा, धीरे धीरे इसमें ऐड करते जाएंगे. ठीक है. अब हर जगह बस स्टॉप बनाना, सबसे पहले एक कॉमन जगह बना लें जहाँ सारी सवारियाँ कन्वर्ज हो रही हैं, सिंपल. फिर उसके बाद वहाँ से जब बसेस ज़्यादा हो जाएंगी, अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी फॉर एग्जांपल, तब ऐड करते जाएंगे. और है ना कि हाँ ये प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोल दी, तो अब ये भी प्रैक्टिस इसमें ऐड हो गई. ये प्रैक्टिस पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग इसको गलत ठहराया, तो ये भी इसमें ऐड. हम एक होलसेल, वी कैनॉट स्टार्ट विद द होलसेल यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी हैव टू स्टार्ट विद पीसमील अप्रोच, पीसमील और रिटेल. ठीक है. वी कैनॉट स्टार्ट विद द कंसिडरिंग द इंडियन. लिखो, कुछ डाउट है बच्चे? खो गए थे. कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, starting with the
wholesale uniform civil code, starting with the wholesale यूनिफॉर्म सिविल कोड, होलसेल को इन्वर्टेड कॉमास में कर लेना, सिर्फ होलसेल को. स्टार्टिंग विद द होलसेल सिविल कोड, would not be a judicial approach. Instead we should start with a common law, piecemeal या common law. piecemeal में फिर पता क्या हो जाएगा, एक एक टुकड़ा हो जाएगा. common law में encompassing all the practices which are grievously. Instead we should start with a common law encompassing all such personal law aspects, all such aspects of personal law, or all such personal law aspects which impinge upon the fundamental right, of all the sections of any one section, or impinge upon fundamental right of any one or the other section. ठीक है. And gradually amending or adding the other relevant aspects. Done? ठीक है. अब यहां पे आ गया, ऑल हिंदूज आर नॉट गवर्न्ड बाय होमोजीनियस पर्सनल लॉ इवन आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ द हिंदू कोड बिल. अलग अलग हैं. अब देखो, शैवाइट्स और लिंगायत्स के बीच में दरार हुई. शैवाइट्स लिंगायत्स अलग अलग बोल रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही कितने सारे समुदाय हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, विवेकानंद सरस्वती, आर्य समाज, ये कितने सारे सेक्ट्स हैं अलग अलग. तो जब उसमें समुदाय हैं, ठीक है, इवन आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ हिंदू कोड बिल नीदर आर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस अंडर देयर पर्सनल लॉज. ठीक है. मुस्लिम्स के अलग अलग सेक्ट्स हैं, ज़्यादातर शरीयत हैं, शरीयत लॉ को फॉलो करने वाले हैं, बाकी भी तो हैं. इवन एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग हिंदू कोड बिल सेवरल ऑफ इट्स प्रोविजंस एक्चुअली सॉट टू लोकेट द कॉम्प्लेक्स लिंक्स बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन राइट्स एंड द राइट टू डिवोर्स. अब इनमें तार जुड़े हुए हैं आपस में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में और राइट टू डिवोर्स में. राइट टू डिवोर्स कौन एक्सरसाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. अब वहां पे आप ले आए ना नो फॉल्ट मैरिज, तो इनहेरिट सक्सेशन में हिस्सा नहीं मिलेगा. अगर वाइफ का दोष है और वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे हस्बैंड से हुए हैं और वो दादा की प्रॉपर्टी में बच्चों के लिए हिस्सा मांग रही है, अगर वाइफ का दोष है, वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चों को मिलेगा. समझ में आया? वो बाद में जब वो एडल्ट हो जाएंगे. तो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, सक्सेशन राइट्स एंड देयर राइट टू डिवोर्स. But facing staunch opposition from conservative quarters, it was amended, diluted and watered down multiple times to finally get separated into 4 different acts. Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act अलग हो गया, the Hindu Minority and Guardianship Act, ठीक है. Then the Hindu Adoptions and Maintenance Act. अब जब ये एक्ट आएंगे तब हम बात, ये समझने के लिए, ठीक है, तो कभी ऐसे वगैरह वाला टॉपिक आ गया तब ये काम आएगा, हमें इतना ज़्यादा नहीं लिखना. अब रही बात इनके नोट्स की, इस टॉपिक के नोट्स विल बी प्रोवाइडिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद आईटी अमेंडमेंट रूल्स. ठीक है, इसको थोड़ा समझना जरूरी था. अब यहाँ पे कंक्लूड कैसे करना है. ग्रैनविली ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, इनकी एक बुक है, ये छोटी वाली है, ठीक है. तो उसमें इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ principle of accommodation, which is the ability to reconcile, to harmonize and to make work
without changing their content. Apparently incompatible concepts. ठीक है, विदाउट चेंजिंग देयर कंटेंट. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छी चीज़ है जो कि इसकी एबिलिटी है कि डिफरेंसेस को रेकनसाइल करना, तालमेल बैठाना, हार्मोनाइज करना, एंड टू मेक वर्क विदाउट चेंजिंग देयर कंटेंट द एपरेंटली इनकम्पैटिबल कॉन्सेप्ट्स. एपरेंटली इनकम्पैटिबल कॉन्सेप्ट्स को भी रेकनसाइल करने की खूबी है. तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन पे काम करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अकोमोडेशन की तर्ज पे चलना चाहिए. जब आंसर वगैरह को कंक्लूड करना है, ऐसे को कंक्लूड करना है, तो ये वाली चीज़ आ जाती है. ठीक है, सो मच फॉर टुडे गाइज, थैंक यू.